અભ્યાસ કરતા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર। આજે હું ગોહેન વિલન આપની સમક્ષ 2047 મારા સપનાનું ભારત લઈને આવ્યો। મારા સપનાનું ભારત સપનું તો સારું જ જોવાય ને, એ પણ જ્યારે હું મારા દેશ વિશેનું જોઉં ત્યારે તો ગદગદ થઈ જાઉં। ભ્રષ્ટાચાર રહિત દેશ એ જ મારો પ્રથમ વિચાર, બેરોજગારી અને ગરીબીમાંથી મુક્ત થાય એ જ મારો બીજો વિચાર, અને ભારત દુનિયામાં નંબર 1 બને એ જ મારો ત્રીજો વિચાર। અહીં સાથે જ કોઈ ચમત્કાર થઈ જાય છે અને એક સ્વચ્છ, સુંદર, સાફ, શિક્ષિત અને સદ્ધર ભારત આખી દુનિયામાં વખણાય છે। વર્ષો પહેલાની જેમ ભારત ભવિષ્યમાં પણ એક અખંડ અને આઝાદ દેશ રહે તેવી મારી ઈચ્છા છે। અહીં ઘણા બધા ધર્મો છે, પરંતુ લોકોને પોતાના ધર્મને જ પૂરતું જ્ઞાન નથી અને વળી બીજાના ધર્મોની ઊંચાદુશીમાં જબરા। અયોધ્યામાં શું બનાવવું, મંદિર કે મસ્જિદ, એ પ્રશ્ન ખૂબ જ ઉઠ્યો હતો। ત્યારે કોઈએ એવું વિચાર્યું ન હતું કે ત્યાં એક હોસ્પિટલ રામ રહીમ નામની જ બનાવી નાખી। હું તો એવું ઈચ્છું છું કે ભારતના હરેક નાગરિક આવું વિચારે। હલકું લોહી હવલદારનું એ ધારાધોરણ છે અને લોકોના ન્યાય પરથી ઉઠી જતો વિશ્વાસ એ ખૂબ જ પીડાદાયક છે। સમાન ન્યાય અને એક જ કાયદો, એ છે મારા સ્વપ્નનું ભારત। નોલેજ વધારે તેવા પુસ્તકોનું શાળામાં આપણ, એ છે મારા સપનાનું ભારત। હું મારા સ્વપ્નના ભારત બનાવવા માંગુ છું, તે માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરવા હું શપથ લઉં છું, જ્યાં ભણતરનો અર્થ ખરેખર જ વિદ્યા મુક્ત થતો હોય અને અકલ્પનીય રાજકારણની સંકજામાંથી મુક્ત હોય, સાથે મન અને રસ્તા એટલા સ્વચ્છ હોય કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાનની જરૂર જ ના પડે। અહીં સરદાર પટેલને પાટીદારો અને દલિતો માટે ભીમરાવને સમિત ન રાખતા મારા દેશવાસીઓએ ભગવો કેસરીઓ કે લીલા રંગથી અલગ થવાના બદલે તેને તિરંગા સાથે અપનાવી દીધો છે। હું જ્યારે સપનું જોઉં ત્યારે મને મારી શાળા, કોઈ સરકારી મેદાન, લાલ કિલ્લો, પરેડ કરતી મારી સેના અને મારું રાષ્ટ્રગીત સંભળાય છે। મારો દેશ મદારી પૂજારી કે મંદિરના દેશ કરતાં વિકસિત અને ટેકનોક્રેટ દેશ બને, એ જ છે મારા સપનાનું ભારત। જેના કારણે અન્ય તહેવારો 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીને આજે આપણે શાંતિથી નિહાળી શકીએ છીએ, કેમ કે મારા શાંત અને સ્વચ્છ ભારતના નાગરિકોને પોતાને ફરજોનું સંપૂર્ણપણે ભાન રહેલું છે। એવા માટે જ મને ભારતીય હોવાનો ગર્વ તથા અભિમાન છે। હવે હું પોલીસને જોઈને ડરના બદલે સલામતી અનુભવું છું। સોશિયલ મીડિયા દેશને પોઝિટિવ માર્ગે લઈ જાય, એ જ છે મારા સ્વપ્નનું ભારત। બાળકને સાચું તેમજ સમાજ ઉપયોગી શિક્ષણ મળે તેવું હું ઈચ્છું છું। ભલે લોકો પોતાના અંગત જીવનમાં ગમે તે ધર્મ પાળે, પરંતુ જાહેર જીવનમાં ફક્ત એક ભારતીય થઈને રહે, તે જ છે મારા સ્વપ્નનું ભારત। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे काय का जय श्री राम, जय हिंद बोलो। अपन तो बोलेंगे, ये कैसे बोलेगा? क्यों नहीं बोल सकता, जरूर बोल सकता। तुम लोगों ने गैर पक्षों को मान के जो शहर में गंदगी फैलाई वो हर दिन दिखती है। अरे भाई, देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुम लोग तो किसी की मदद भी नहीं कर सकते। अरे पूरे देश को खोखला कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। अरे तुम्हारा तो खून ही गंदा है। अभी देश के लिए कुछ किया है तुम लोगों ने? अभी तू ये बता, आर्मी के लिए दौड़ के लिए कभी गए हो क्या? आर्मी में जाने के लिए कभी कोशिश की है? आर्मी में जाने के लिए कभी आना सुबह, हमारे बंदे दिखाएंगे उधर, हमारे हिंदू वाले दौड़ते हैं। अरे भाई, मैं भी इस देश का निवासी। अरे हो गए इस देश के निवासी, लेकिन तुमने देश के लिए कभी कुछ किया नहीं है। हमने इस देश को आजाद किया है और अपनी अहम भूमिया निभाई है। तुमने निभाई है क्या? नहीं निभाई है क्या? चलो तू हमारा मुंह मत कर और हमारे साथ मत आना कल से। चल निकल। अब उन लोगों को मैं दिखाऊंगा शशि देशभक्ति क्या होगी। मैं भी इस देश का निवासी हूँ। एक मुसलमान भारत में रहकर एक शशि देशभक्ति कर सकता है। तुम लोग उस दिन तुम मेरे को बहुत बोले थे कि तुम लोग देश को गंदा कर रहे, तुम्हारा खून ही गंदा है। आज ये है तेरे देशभक्ति। अरे देख, ये है तेरे देशभक्ति, ये है तेरे देशभक्ति। थोड़ी तो शर्म कर भाई, कैसे कर रहा ये है, लेकिन तुमने कैसे नहीं से फेंका। ये है तेरे देशभक्ति, ये है तेरे देशभक्ति। उस दिन तक तुम लोग मेरे
लड़ाई लड़नी है तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं, लेकिन ये इस गंदगी के खिलाफ है, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। वैसे भी गंदगी है ना हमारे देश को आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर देगी। अरे भाई गलतियों की वजह से किसको भी गलती करनी है। गलती अरे भाई इतने उधर क्यों है? अरे भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत इससे मैंने क्या करा? है। अरे भाई मेरी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है, उसके ऊपर मेरे पास से 5 लाख रुपए हैं। ठीक है भाई, तो ले लो तुम्हारे साथ तुमको दूंगा, मैं तेरी सरकारी जो भी मैं बता दूंगा। धन्यवाद। लाए पूरे पास। हाँ सर, पूरे 5। ये लो तुम्हारा जॉब ज्वाइन पेपर, कल से जॉब में आ जाना। थैंक यू सर। अरे भाई जैसे ही नौकरी पूरे 5 में लगी है ना, मैं तुमका कब से पीछा कर रहा हूँ। तुम जब तुम्हारे दोस्त के पास से 5 रुपये मांग रहे थे ना, तब ये है तेरी देशभक्ति। तुमने देश को खोखला कर रखा है। तुम्हारा है तो तुम तो भ्रष्टाचार के विश्व देखे भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ होता उसे बड़ा मत, ताकि कोई भी व्यक्ति देश को और आने वाली पीढ़ियों को भी खराब न करे। और वैसे भी इसलिए तुमको ना ये देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उसे बड़ा मत, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। और ऐसे वैसे भी हमारे देश को भ्रष्टाचार को जितना ही बढ़ाएंगे ना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार के सामने खिलाफ आवाज उठा और उसे देश को बना रखता है, उसे मिटा दो, ताकि हमारे देश उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति। ठीक है। अरे सॉरी भाई, मैं अब शपथ लेता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और आगे से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा। शाबाश। सॉरी भाई। भाई मुझे तो 2 दिन से कुछ नहीं है। चल हट, दिखाई जाएगा। उस दिन ना तुम लोग मेरे को बहुत बोले थे कि तुम है ना सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। ये उस दिन तुम मेरे को बहुत बोले थे कि सबसे देशभक्ति क्या होती है। वैसे भी ये है तेरी देशभक्ति। जैसे हम उन जवानों की बराबरी में कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश में रहकर सबसे देशभक्ति कर सकता है, उसे कहते हैं देश सबसे देशभक्ति। और आज तुम्हें एक गरीब की मदद करता है ना, तो तुमने आज सबसे देशभक्ति पाई है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। ठीक है। ठीक है। वैसे भी हमारे देश जितना बाहर से नहीं उतना ही अंदर से खोखला बन जाता है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आदि चीजों के सामने लड़ना चाहिए, उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति। ठीक है। अरे भाई अब बता, तुम हिंदू है या मुसलमान? जैसा में जो खून बह रहा है ना वो तो एक मुसलमान का है, और तुमने जो खून को गंदा बता रहे थे ना वो खून हमारे शरीर के रगों में दौड़ रहा है। वैसे भी भाई हमारे देश जितना ही अंदर से नहीं उतना ही अंदर बाहर से खोखला बनता रहता है। वैसे भी तुम लोग ये खून को बता रहे थे ना, वही है खून तेरे रगों में दौड़ रहा है, और मुझे देशभक्ति का पाठ सिखा रहे थे ना, मैं मानता हूँ कि उन जवानों की बराबर में कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश में रहकर सबसे देशभक्ति कर सकता है। और तुमने जो ये कपड़े पहन रखे है ना, क्या पता है हिंदू ने बनाए होंगे, और मैंने ये टोपी पहन रखी है ना, क्या पता है हिंदू ने बनाए होंगे। वैसे भी हमारे देश जितना बाहर से नहीं उतना ही अंदर से देशभक्ति के लिए लड़ता है, उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति। भाई तुम सही बोल रहे हो। तो फिर आगे से हम कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और आगे से हम साथ में रहकर देश में देशभक्ति करेंगे। कोई बात नहीं भाई सर।
हमारे इस नाटक से आपको यही सीख मिलती है कि आप हिंदू मुस्लिम में कुछ भी भेदभाव मत कीजिए, एक ही धर्म के लोग रहे, सब मिलकर रहे और देशभक्ति करें। कभी हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म के साथ भेदभाव मत कीजिए। अरे काय का जय श्री राम, जय हिंद बोलो। अपन तो बोलेंगे, ये कैसे बोलेगा? क्यों नहीं बोल सकता, जरूर बोल सकता। तुम लोगों ने गैर पक्षों को मान के जो शहर में गंदगी फैलाई वो हर दिन दिखती है। अरे भाई, देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुम लोग तो किसी की मदद भी नहीं कर सकते। अरे पूरे देश को खोखला कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। अरे तुम्हारा तो खून ही गंदा है। अभी देश के लिए कुछ किया है तुम लोगों ने? अभी तू ये बता, आर्मी के लिए दौड़ के लिए कभी गए हो क्या? आर्मी में जाने के लिए कभी कोशिश की है? आर्मी में जाने के लिए कभी आना सुबह, हमारे बंदे दिखाएंगे उधर, हमारे हिंदू वाले दौड़ते हैं। अरे भाई, मैं भी इस देश का निवासी हूँ। अरे हो गए देश के निवासी, लेकिन तुमने देश के लिए कभी कुछ किया नहीं है। हमने इस देश को आजाद किया है और अपनी अहम भूमिका निभाई है। तुमने निभाई है क्या? नहीं निभाई है क्या? चल अब तू हमारा मुंह मत कर और हमारे साथ मत आना कल से। चल निकल। अब उन लोगों को मैं दिखाऊंगा कि सच्ची देशभक्ति क्या होगी। मैं भी इस देश का निवासी हूँ। एक मुसलमान भारत में रहकर एक सच्ची देशभक्ति कर सकता है। ये है तेरी देशभक्ति। तुम लोग उस दिन तुम मेरे को बहुत बोले थे कि तुम लोग देश को गंदा कर रहे हैं, तुम्हारा खून ही गंदा है। आज ये है तेरी देशभक्ति। अरे देख, ये है तेरी देशभक्ति, ये है तेरी देशभक्ति। थोड़ी तो शर्म कर भाई, कसे का दबा यही है, लेकिन तुमने कसा नीचे फेंका। ये है तेरी देशभक्ति, ये है तेरी देशभक्ति। उस दिन तक तुम लोग मेरे को बहुत बोले थे सबसे देशभक्ति क्या होगी। लड़ाई लड़नी है तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं, लेकिन ये इस गंदगी के खिलाफ है, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। वैसे भी गंदगी है ना, हमारे देश को आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर देगी। अरे भाई, गलतियों की किसको भी गलती करना है। सब ठीक है। अरे भाई, इतने उदास क्यों है? अरे भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। इतने पैसे क्या करें? अरे भाई मेरी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है, उसके ऊपर मेरे पास से 5 लाख रुपए हैं। ये भाई तो मेरे को कमाना है, तुमको दूंगा, मैं तेरी सरकारी जॉब में लगा दूंगा। धन्यवाद। लाए अपने पास? हाँ सर, पूरे 5। ये लो तुम्हारा जॉब ज्वाइन पेपर, कल से जॉब में आ जाए। थैंक यू सर। अरे भाई, जैसे नौकरी पूरे मास में लगी है ना, मैं तुमका कब से पीछा कर रहा हूँ। तुम जब तुम्हारे दोस्त के पास से 5 रुपये मांग रहे थे ना, तब ये है तेरी देशभक्ति। तुमने देश को खोखला कर रखा है। तुम्हारा तो तुम तो भ्रष्टाचार के विश्व देखे भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ होता उसे बड़ा मत, ताकि कोई भी व्यक्ति देश को और आने वाली पीढ़ियों को भी खराब न करे। और वैसे भी इसलिए तुमको ना ये देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा, उसे बढ़ा मत, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। और ऐसे वैसे भी हमारे देश को भ्रष्टाचार को जितना ही बढ़ाएंगे ना, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, ताकि कोई भी भ्रष्टाचार के सामने खिलाफ आवाज उठा और उसे देश को गंदा करता है, उसे मिटा दो, ताकि हमारे देश उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति। ठीक है? अरे सॉरी भाई, मैं अब शपथ लेता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और आगे से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा। शाबाश। चल हट, भाई गई का। उस दिन ना तुम लोग मेरे को बहुत बोले थे कि तुम है ना सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। ये उस दिन तुम मेरे को बहुत बोले थे।
कि सबसे देशभक्ति क्या होती है। और वैसे भी ये है तेरी देशभक्ति, जैसे हम उन जवानों की बराबरी में कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश में रहकर सबसे देशभक्ति कर सकता है, उसे कहते हैं देश सबसे देशभक्ति। और आज तुम्हें एक गरीब की मदद करता है ना, तो तुमने आज सबसे देशभक्ति पाई है। मुझे माफ कर दे, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे भाई कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है। वैसे भी हमारे देश जितना बाहर से नहीं उतना ही अंदर से खोखला बन जाता है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आदि चीजों के सामने रखना चाहिए, उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति, ठीक है? अरे भाई अब बता दो, हिंदू है या मुसलमान? जैसा में जो खून बह रहा है ना, वो तो एक मुसलमान का है। और तुमने जो खून को गंदा बता रहे थे ना, वो खून हमारे शरीर के रगों में दौड़ रहा है। वैसे भी भाई हमारे देश जितना ही अंदर से नहीं उतना ही अंदर बाहर से खोखला बनता रहता है। वैसे भी तुम लोग ये खून को बता रहे थे ना, वही है खून तेरे रगों में दौड़ रहा है, रगों में दौड़ रहा है। और मुझे देशभक्ति का पाठ सिखा रहे थे ना, मैं मानता हूँ कि उन जवानों की बराबरी में कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश में रहकर सबसे देशभक्ति कर सकता है। और तुमने जो ये कपड़े पहन रखे है ना, क्या पता है कि हिंदू ने बनाए होंगे, और मैंने ये टोपी पहन रखी है ना, क्या पता है हिंदू ने बनाई होगी। वैसे भी हमारे देश जितना बाहर से नहीं उतना ही अंदर से देशभक्ति के लिए लड़ता है, उसे कहते हैं सबसे देशभक्ति। भाई तुम सही बोल रहे हो। तो फिर आगे से हम कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और आगे से हम साथ में रहकर देश में देशभक्ति करेंगे। कोई बात नहीं भाई सर। हमारे इस नाटक से आपको यही सीख मिलती है कि आप हिंदू मुस्लिम में कुछ भी भेदभाव मत कीजिए, एक ही धर्म के लोग रहे, सब मिलकर रहे और देशभक्ति करें। कभी हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म के साथ भेदभाव मत कीजिए।